Hi guys, and welcome to Cricket Caviar. It's been another great week for cricket, and especially the women's cricket, where we are seeing some amazing matches in the Women's World Cup. First week में हमने देखा कि West Indies they produced some good upsets, like they beat the Yeah, hosts New Zealand, and again they beat England. तो काफी मजा आ रहा है, and India is also India had victories against Pakistan where they were in a tough situation, and also they had a victory great. against West Indies now. So they had a loss against New Zealand, but that was kind of expected. So top four में अभी रहने के लिए India has to win, even if they lose to Australia or they lose to England, they have to win against South Africa, and also win the remaining matches like against teams like Bangladesh and other teams that are there. So Yeah, Pratik, what's your view on the Women's World Cup? Like, are you following this tournament? yeah. I'm following a bit. India की batting is actually quite good, and Jhulan Goswami obviously थोड़ा अकेले पड़ जाती है bowling में कभी-कभी. But yeah, man, India is doing pretty well. I would say we are posting good totals, and जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हारे थे, right? वो थोड़ा upsetting था. But yeah, otherwise it's going well. But again, today Australia showed why they have the strongest team. They beat New Zealand very with a big margin. So, इंडिया के बैटिंग में मुझे एक ऑब्वियस वीकनेस जो दिख रहा है वो है मिथाली राज. आई मीन वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, मतलब रन स्कोर शी हैज टू स्कोर सिंगल्स एटलीस्ट, उसको स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, बट वो एक तो शी इज कमिंग एट नंबर 3 और नंबर 4 विच इज लाइक अ वेरी क्रिटिकल बैटिंग पोजीशन. वहां पे आके तुम इतना बॉल्स मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते. मतलब आई नो शी इज 40 इयर्स ऑफ एज एंड शी इज 39 इयर्स six ऑफ एज, also. एंड मतलब ऑलरेडी उसने काफी क्रिकेट खेला, बट she's really, I mean, blocking a very good batsman like Shafali Verma or Yastika, who can. Yeah, yeah. हरमनप्रीत भी बहुत लोअर ऑर्डर में आ रही है. मे बी लाइक वो वहां पे सही बैठती है नंबर 3 पे. तो फाइनली हरमनप्रीत के का जो इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि वो अभी तक वो 170 के बेसिस पे ही खेल रही है, तो फाइनली शी इज कम गुड, एंड उसने दो अच्छे नॉक्स खेले, एक लूजिंग कॉज में एक विनिंग कॉज में. स्मृति yeah, मंदना तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे फॉर्म में है, चल रही है मतलब अभी, एंड बॉलिंग इज डूइंग ओके. मतलब उसमें स्पिनर्स इंडिया के अच्छे हैं, जैसे स्नेह राणा. आई थिंक शी हैज बीन द स्टार ऑफ द दिस इंडियन lineup with the bat and with the ball. Sneh Rana जब से टीम में आई है तब से इंडियन टीम looks a different yeah, team. They can win from anywhere. मतलब she has contributed in every department, be it the field. You know, uh, I really like Sneh Rana right now. yeah, So yeah. Like जो कल के मैच में जो टर्न अराउंड हुआ डॉटिन के विकेट के बाद, that was unbelievable. ऐसा लग रहा था and 320 कम पड़ जाएंगे, and then फर्स्ट and विकेट गिरने again के Sneh बाद. Rana was the woman who picked that crucial wicket. And उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जब वो आई तो पूजा वस्त्राकर के साथ उसने जो पार्टनरशिप किया, that was epic. I mean 122 runs in 100 balls. So we normally don't see this kind of partnership in women's cricket with such high Yeah, strike rate, 7 runs over. especially after Yeah. 114 for 6. It's Yeah, a we were good yeah, thing. at a very bad spot. सिर्फ 3.5 का रन रेट चल रहा था. Yeah. मिथाली ने ऑलरेडी 9 ऑफ 35 खेल के पूरे टीम को संकट में डाल दिया था. और बट यार आई डोंट सी देम विनिंग द टाइटल. मतलब यार Yeah, ठीक है ये. सेमीज तक जाएंगे, बट लग रहा है सेमीज तक जा सकते हैं. Yeah. नहीं, सेमीज तो डेफिनेटली जाएंगे क्योंकि वो फॉर्मेट है कि सबके साथ खेलना है सबको. तो आई थिंक ठीक है, टॉप 4 में वी विल मेक तो इट फोर में आफ्टर पास हो ऑस्ट्रेलिया गए थे. न्यूजीलैंड. Yeah. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड विल डेफिनेटली बी टॉप 2, एंड उसके बाद हमारा मे बी it will be England or India, or it can be West Indies or India, or it can be South Africa or India. तो ये सारे But न्यूजीलैंड कॉम्बिनेशंस के हो आज सकते हैं. पॉइंट कम हो गए होंगे ना, बिकॉज दे हैव हैड अ वेरी हैवी डिफीट. ऑस्ट्रेलिया बीट देम बाय 140 रन्स, तो उनका नेट रन रेट खराब हो गया होगा. न्यूजीलैंड का. या या बट मैं एक्चुअली बट देखा हुआ है न्यूजीलैंड. वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैच का भी काफी बड़े छोटे विक्ट्रीज हो रहे हैं, ऐसा मैं देखा हूँ. लाइक कल इंडिया ने भी वेस्ट इंडीज को बढ़ा रहा. Then India themselves lost by quite a big margin against New Zealand. So I think it would be fine. Eventually, New Zealand will win, will beat other teams. So
नहीं, न्यूजीलैंड का अभी कुछ क्रूशियल मैचेस हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, तो वो मैचेस पर डिपेंड करेगा। देखो ऑस्ट्रेलिया से तो सभी हारेंगे, तो दैट विल बी अ कॉमन फैक्टर, आई थिंक उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सभी वैसे ही हारेंगे ऑस्ट्रेलिया से, दे आर दैट गुड अ टीम, तो दैट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस एनीवे। तो या लेट्स सी, होपफुली इंडिया कैन मेक इट टू द सेमीफाइनल्स एटलीस्ट, and maybe the finals last time, क्योंकि वो लोग finals भी they made the finals and it was a heartbreaking defeat in the finals, so But yeah, like you said at the beginning of the video, very exciting time. 3 test series going on, Women's World Cup and IPL is just around the corner. So this is a great time, man, for cricket. So coming to the test series between India and Sri Lanka first, I want to discuss, क्योंकि pink ball test match कल स्टार्ट हुआ बैंगलोर में, एंड देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड द ग्राउंड, क्योंकि वो लोग डिनर ब्रेक में आरसीबी का कैप्टन भी चिन्नास्वामी से ज्यादा दूर नहीं है वो जगह, चर्च स्ट्रीट, तो लाइक कुणाल वाज सेइंग कि वहीं पे आरसीबी कैफे भी है, तो दैट इज द ओनली कैफे एक्चुअली व्हिच हैज अ आईपीएल थीम काइंड ऑफ कैफे, एंड वहां पे उन्होंने अनफल किया कि फैफ डू प्लेसिस, तो we'll come to that later, but it was a very interesting day in Bangalore, and batting first India, यार पिच क्या था कल, मतलब पिच था या पिंक बॉल इफेक्ट था, मतलब अगेन पिंक बॉल के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क्स आ गए कि ये मतलब इज इट द वे टू गो अहेड, मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो पिंक बॉल यार ठीक है नॉर्मली लगता है, बट इंडिया में पिंक बॉल का इफेक्ट कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड हो जाता है, स्पिन हो या फिर स्विंग हो, कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है, but it's fun to watch. I'm not saying it's not fun to watch, but भाई बहुत entertaining था day one. Like I don't know इतना complaints क्यों आ रहे हैं. I mean, do people only want to see कि भाई Indian players should make hundreds, but match तो बहुत interesting चल रहा है ना, like day one में बहुत मजा आया, and yeah, actually I understand अगर अय्यर जल्दी आउट जाता 170 ऑल आउट जाती तो या कितना क्रिटिसिज्म होता है, I don't know, but अभी तो we actually did pretty well, like we crossed 250, तो नहीं, आई मीन पिच तो काफी टर्न हो रहा था, और श्रीलंकन स्पिनर स्पेशली एम्बुलदेन या जय विक्रमा बोल्ड रियली वेल एक्चुअली, और भाई 250 पहुंचे हैं तो सिर्फ श्रेयस अय्यर की वजह से ही पहुंचे हैं। या ब्रिलियंट, नॉट ब्रिलियंट जो काउंटर अटैक किया, एंड लाइक जब स्पेशली जब अश्विन आउट हुआ था ना, देन ही रियली स्टार्टेड हिटिंग बिग सिक्सेस, मैन आगे आके बहुत सही सिक्सेस मार रहा था, एंड फर्स्ट सेशन में इंडिया 93 फॉर, सॉरी गो अहेड, या नहीं फर्स्ट सेशन में इंडिया 93 फॉर 4 था, तो मुझे तभी लग रहा था कि यार ये पिच में क्या है, कि क्योंकि इंडिया नॉर्मली 93 फॉर 4 तो होता नहीं है फर्स्ट सेशन में, एंड आई सॉ कि हनुमा विहारी और कोहली कुछ अच्छे ड्राइव्स भी खेल रहे थे, फिर सडनली बॉल धीरे धीरे और टर्न होने लगा, एंड स्पिनर्स काफी डोमिनेट करने लगे, बाउंस हो रहा था, अनइवन बाउंस था, ज्यादा टर्न हो रहा था, तो सब कुछ था, बट आउट ऑफ दैट श्रेयस अय्यर जब वो उसने 50 मारा, तो उसने जैसे सेलिब्रेट किया कि जैसे उसने 100 मार दिया, हेलमेट पूरा निकाल के, इट वाज दैट टफ, मतलब इट वाज दैट टफ टू स्कोर ऑन अ पिच, एंड दिस सिक्सर के साथ खेला था ना 50, वो सिक्स भी बहुत बड़ा था, आई थिंक इट रीच्ड द रूफ, हाँ, एंड उसने वो जो उसके बाद 92 मारे हैं, दैट इज वर्थ ऑलमोस्ट अ डबल सेंचुरी और ऑन एनी अदर फ्लैट विकेट, मतलब ये पाकिस्तान में तो शायद ट्रिपल सेंचुरी माना जाना चाहिए। अगर ये टेस्ट मैच रावलपिंडी में होता तो ये ट्रिपल सेंचुरी कर देता श्रेयस अय्यर, आई थिंक, तो सहवाग का रिकॉर्ड थ्रेटन करता है विद नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि इतना फास्ट खेलता है श्रेयस अय्यर। but Shreyas Iyer he has now sealed his place, I think. Now away test is his true test, मतलब away में ही उसका टेस्ट है, और मतलब there is no doubt now, there is no way back for Ajinkya Rahane, और पुजारा का पता नहीं, पुजारा is still trying, I mean वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा है and all, but I don't think now with Shreyas Iyer's performance there is any way back for Ajinkya Rahane now. अरे श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया था ना, so yeah, within just few months he is really impressed. या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट 100 उसने डेब्यू पे ही मार दिया था, तो उधर से उसका काफी अच्छा, साउथ अफ्रीका में आई थिंक ही शुड हैव गॉट वन चांस एटलीस्ट, मे बी लास्ट टेस्ट उसको या सेकंड टेस्ट उसको दे सकते थे, मतलब
ठीक वैसे है अभी बट तो मतलब राहुल एंड रोहित फिक्स हो गए हैं टॉप पे, तो मयंक को इतनी मुश्किल से थोड़े चांस मिले हैं, तो उसको क्या इंटरेस्ट नहीं है क्या चांस में? अरे क्या कर रहा था वो? भाई वो इतना फनी था ना, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मैं हंस रहा था मतलब डिक यार। वाला बहुत एक ही तो फनी और कैरेक्टर सबसे फनी था कि मतलब कि अपील कर रहे हैं और ये लोग सोचे कि अपील के बीच में हम भाग जाते हैं, और रोहित भी आ गया, वो भी बोला हाँ मैं भागूंगा, बीच में वो रोक दिया। तो उसके बाद सबसे फनी था कि डिकवेला ने जब बॉल कलेक्ट किया उसके बाद वो रिव्यू कर रहे हैं, वो बेल्स नहीं उठा रहे, उसको असलंका बोल रहा है भाई बेल उठा, पहले बेल तो उठा ले भाई, वो आउट है वैसे भी, तो क्या फर्क भाई पड़ता है, डिक तो वाला वो बहुत फनी अंपायर से कैरेक्टर जाके है, मुझे लड़ याद रहा है है। जब मुझे याद है जब दिग्वेला लड़ इंग्लैंड रहा है जब भाई, गई थी रिव्यू श्रीलंका। दे क्यों नहीं आउट है, और इतना बड़ा इनसाइड एज था, इतना बड़ा इनसाइड एज था, मतलब क्या, इट वाज अ वेरी मुझे याद है वियर्ड। डिकवेला ने एक बार भी कुछ कॉमेडी की थी, जॉनी बेस्टो कुछ बोल रहा था व्हेन इंग्लैंड वर टूरिंग देम, कुछ फनी हाँ ही हाँ, वाज सेइंग सम थिंग्स, या आई कांट रिमेंबर नाउ, बट नहीं डिकवेला इज वो अ फन। है थोड़ा फनी, और वो अभी 1 साल बाद आए, मतलब उनको जो बैन लगा था बबल ब्रीच या करने के बाद, तो श्रीलंका वो बहुत अच्छा है, श्रीलंकन टीम के लिए फाइट भी करता है बैटिंग में, या मैंने यू नो। देखा टफ अवे क्रिकेट में ही इज ऑलवेज मेकिंग 50s जब टीम इज स्ट्रगलिंग, तो ही इज अ गुड प्लेयर, हाँ प्रीटी गुड एंड प्लेयर या। एनीवे आई थिंक श्रेयस अय्यर के नॉक को हम जितना ग्लोरीफाई करें उतना कम है, मतलब इट वाज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट नॉक एंड बाय द वे ऑब्वियसली भाई एक बात ये भी है क्या कि आज इतना मैं एक्चुअली थोड़ा मीडिया में देख रहा था तो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे पिच को, उसका रीजन ये भी है क्या कि विराट कोहली को आज जो बॉल एकदम लो बाउंस हुआ, एंड यू नो पीपल आर लाइक बैंगलोर में मैच है, विराट कोहली का कुछ अच्छा स्कोर बट देखने को मुझे मिले। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज एंटायरली द पिच फॉल्ट और इज इट द पिंक बॉल फॉल्ट, क्योंकि यू नो अगर इस पिच पे शायद रेड बॉल होता तो इतना ज्यादा टर्न नहीं होता, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आई डोंट नो इफ इट इज वी कैन एट्रीब्यूट दिस टू द पिच और टू द बॉल, बट हाँ अब विराट कोहली का रिएक्शन लेकिन बहुत फनी था, मतलब फनी नहीं, इट वाज एक्चुअली क्वाइट सैड जब वो आउट हुआ, मतलब जैसे वो तरस से देख रहा था ना, मतलब कि मतलब जैसे कि लग रहा था कि सब कुछ ही खत्म हो गया एकदम वर्ल्ड में, एंड ही लुक्ड सो रिजाइन्ड टू द फैक्ट कि भाई कुछ नहीं होने वाला, तो मतलब इट फेल्ट सैड बट या मैन, आई Anyways, I मीन think इट this is हैज the बीन first द time कि श्रीलंका ने कुछ अच्छा किया है. I think I also want to praise Sri Lanka spinners. They bowled really well. Jai Vikram is a very good addition. और I mean, I would have no doubt in my mind कि अगर वो बॉल लो नहीं रहा होता तो जय विक्रमा और एम्बुल दिनिया में से कोई विराट कोहली को आउट कर ही देता थोड़ी देर में, मैक्सिमम वो 50 बना देता, बिकॉज द वे दे वर बॉलिंग, लाइक रोहित शर्मा को बहुत अच्छे बॉल पे आउट किया, एंड देन इफ यू रिमेंबर विराट कोहली जब सिर्फ 5 रन पे था तो उसका एक आउटसाइड एज, ही वाज जस्ट लाइक ऑलमोस्ट कैच ड्रॉप हुआ था, आई थिंक द फील्डर डिड नॉट मूव क्विकली, तो वो उसी टाइम आउट हो सकता था हाँ पहले ही तो। नहीं इस पिच पे तो वही है, कभी ना कभी देख आउट होना ही था, मतलब पिच या बॉल जो भी बोलो, बट कभी ना कभी आउट होना ही था, एंड ठीक है श्रेयस अय्यर ने अच्छा एग्रेसिव अप्रोच रखा, मतलब 92 में से 64 जो रन आए श्रेयस अय्यर के, वो बाउंड्रीज में आए, मतलब उसने 10 फोर्स मारा है एंड 4 सिक्सेस मारे हैं, एंड लास्ट सम में टेल भी, लास्ट में बस मुझे ये समझ नहीं आया, वो जो शमी के साथ बैटिंग कर रहा था, तो आई थिंक ही शुड हैव गिवन स्ट्राइक टू शमी, यू नो बिकॉज शमी शमी आज फिर से साउथ थोड़े और, अफ्रीका वाला शमी आया जो यू नो केयरलेस शमी। हाँ लेकिन यार कल देना चाहिए था उसको स्ट्राइक, शमी को थोड़े रन्स और मतलब 270 तक भी बन सकता था अगर वो शमी को स्ट्राइक देता, तो 4-5 रन तो मैं तो उन्होंने वही ऐसे ही बोल छोड़ रहा था दिए। कि श्रेयस अय्यर ने अग्रेसिव बैटिंग स्टार्ट करी बिकॉज ही सॉ ऋषभ पंत कैसे बैटिंग कर रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है क्या मे बी। नहीं ऋषभ पंत तो हर पिच पे उसका तो हमेशा ही ऐसे ही अप्रोच रहता है, एंड वो तो पिच को समझने का कोशिश भी नहीं किया बिल्कुल भी, वो उसको आके ही वो पंत मैडनेस दिखाना था, और वो आके ही मतलब जो स्टार्ट कर दिया था एम्बुल दिनिया को मारना, एम्बुल दिनिया उसको आउट करके, बाय द वे एम्बुल दिनिया पंत को जब आउट किया तो वो कितना फायर्ड अप था, क्योंकि लास्ट मैच में पंत ने उसको जो धोया था बहुत ना, सिक्सेस मतलब मारे। हाँ तो वो बहुत ज्यादा फायर्ड अप था, बट आज अरे देखते भाई हैं एनीवे इंडियन बुमराह की बॉलिंग इंडियन कैसी बोलर्स लगी? का। हाँ हाँ बुमराह की बॉलिंग कैसी हाँ लगी एग्जैक्टली आज? आई वाज कमिंग टू इंडियन बॉलिंग, यार इंडियंस जब बॉलिंग शुरू किए लाइट्स के अंडर, तो वो स्पिन से स्विंग पिच हो गया, मतलब वहां या पे स्विंग होने लगा, सीम मूवमेंट होने लगा, एंड बुमराह तो बहुत अच्छा किया, मतलब उसका तो हर बॉल लग रहा था एज ही लगेगा, एंड एवरीथिंग वाज कैचिंग द एज एक्चुअली, एंड श्रेयस टुक 2 गुड बुमराह कैचेस इन कभी थर्ड स्लिप।
इस एरिया में बॉल ही नहीं डालता अवे टूर्स में, जहाँ पे आज डाल रहा था, जो लाइक स्लिप में एजेस जा रहे थे। कभी अवे टूर्स में देखा ही नहीं उस जगह बॉल डालते हुए 5th 6th स्टंप पे जैसा आज डाल रहा था। और भाई लेकिन भाई श्रेयस अय्यर का बैटिंग ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ द डे था, लेकिन सेकंड मोमेंट ऑफ द डे मेरे लिए था जो शमी ने फर्स्ट बॉल डाला करुणारत्ने को। लाइक अननेसेसरी, वो बंदा टॉप 10 बॉलर्स की बैटर्स की लिस्ट में रहता है, शमी ने फर्स्ट बॉल पे पोल्स, एंड अमेजिंग, यार क्या बॉल था। इस टेस्ट से तुम जज नहीं कर सकते यार कि वो मतलब यार ये टेस्ट मैच इज अ पिंक बॉल टेस्ट मैच, इससे तो कुछ It was नहीं। beautiful to watch, man, But, because मैं जब हाँ वो टॉप 10 बैटर्स की लिस्ट देख रहा था रिसेंट, तो मैं आई वाज लाइक कि करुणारत्ने इज ही रियली डिजर्विंग। बाय द वे एंजेलो मैथ्यूज ने बहुत अच्छा खेला कल, मतलब उसका एक एज लगा था जो पंत के जस्ट पहले गिर गया, बट उसके बाद उसने काफी सिक्सेस मारे, और मतलब अक्षर पटेल को एक्चुअली उसने, जडेजा और अक्षर पटेल को ही ट्राइड टू डोमिनेट अ लॉट। भाई एंजेलो मैथ्यूज अगर नहीं खेलता तो एक सेशन में ऑल आउट हो जाती टीम उनकी। हाँ डेफिनेटली ऑल आउट हो जाते हैं अभी तक, एंजेलो मैथ्यूज की वजह से ही वो लोग अभी तक है, मतलब। बट ठीक है, अब देखते हैं आज क्या होता है, एंड लेट्स होप विराट दिस कोहली को मैच। फिर से चांस मिलेगा विराट कोहली को। Yeah, well, hi guys. Good to be here. हाय कुणाल, हाय मैन, Yeah, I want to show something first. I have tickets for today's day. ओ व्हाट द फक Please. मैन। Day नाइस two. नाइस नाइस। Yeah, मुझे black में मिला था डबल प्राइस ना, but जाके still. विराट कोहली का 100 करा दे भाई, मर रहे लोग। Yeah, and I'm really happy that today we'll get to see India bat as well, right? So I'm really excited. So Yeah, watch me live today on TV, guys. श्योर नहीं, कल भी बहुत अच्छा दिन था, मतलब मजा आया होगा जो स्पेक्टेटर्स थे। 16 विकेट्स इन कल अ अच्छा डे, था। और इतना कुछ हुआ। श्रेयस अय्यर का जो इनिंग्स था, इंडिया की बॉलिंग, मतलब मजा आ गया होगा स्पेक्टेटर्स को तो। एंड आज भी वैसे ही रहेगा। लोग थोड़ा कम क्रिटिसाइज करे, पिंक बॉल एक अलग डायमेंशन लाता है गेम में, आई मीन मजा आता है, और टाइमिंग्स कितने एंटरटेनिंग है यार, लाइक टाइमिंग्स, लाइक अभी जैसे कुणाल हमारे से वीडियो बना पा रहा है, अदरवाइज वो ऑलरेडी स्टेडियम में होता है। हाँ एंड बैंगलोर क्या, देख वो जो वहां पे टेकी क्राउड है ना बैंगलोर का, आई थिंक उनको सूट भी करता है, क्योंकि वो लोग का सैटरडे संडे नॉर्मली सबका ही ऑफ रहता है, तो मोस्टली तो उनके वीकडेज लिए में देखें बहुत एक, सेशंस आफ्टर वर्क, या करेक्ट। और 2 दिन में खत्म हो जाएगा टेस्ट मैच। सबसे बेस्ट चीज वो Yeah, है। लेकिन आज लेकिन खत्म नहीं होगा, I think आज इंडिया will हाँ, bat आज for खत्म 2 नहीं seconds, होगा, right? बट उसके बाद कल ही खत्म होगा। कल मिडिल में हो जाएगा कभी, हाँ। बट वही हम लोग बात कर रहे थे कल, शमी और बुमराह की जो स्पेल थी देखने में बहुत मजा आ रहा था। Yeah. I was expecting कि Bumrah will not, I mean, Shami will not be able to get much wickets or something. So I did not keep him in my fantasy team. But he was pretty good. Yeah. या कितना एंटरटेनिंग है जब सन रहता है तो स्पिन को फेवर कर रहा है, एंड लाइट्स में फिर फास्ट बॉलर्स को एंड मजा आ रहा है। वो जब पता है फर्स्ट ओवर बुमराह ने किया एंड ही गॉट द विकेट, एंड सेकंड ओवर अश्विन आया, तो कमेंटेटर्स बोल रहे थे यार अश्विन क्यों आया, अभी तो बुमराह को स्विंग हो रहा है, विकेट मिल रहा है, तो मे बी शमी शुड हैव कम। और अश्विन ने 2 ओवर किए, मतलब सेकंड एंड थर्ड फोर्थ ओवर उसने डाले, फिर शमी आया और पहले ही बॉल पे उसने विकेट ले लिया, वो दिमुत करुणारत्ने का। तो मतलब कमेंटेटर्स वेर प्रूव्ड राइट इन अ वे कि स्टार्टिंग से ही मतलब शमी को देना चाहिए था न्यू बॉल, तो या इट वाज अमेजिंग, मतलब चल कुणाल तू जाएगा तो। अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ देयर बेस्ट बैटर एक्चुअली मिडिल ऑर्डर में, बट ही हैज बीन केप्ट क्वाइट इन दिस सीरीज। शमी ने कल फिर से बहुत अच्छा इनस्विंग डाला उसको, एंड ही वाज एलबीडब्ल्यू। एंड वो पता है वो शायद रिव्यू नहीं, पूरा टीम अगेंस्ट था उस रिव्यू के एक्सेप्ट पंत, मतलब वो पंत ने जबरदस्ती रोहित शर्मा से रिव्यू करवाया है। सबको लग रहा है हाइट ज्यादा होगा। हाँ हाइट, वो रोहित शर्मा ऐसे बोल रहा है ऐसे जाएगा ऊपर एकदम, तो वो बोल रहा है नहीं ले लो तो वो ले लिया फाइनली। एंड लास्ट में भी इनफैक्ट एक रिव्यू मिस कर दिया इंडिया ने, एम्बुल्देनिया का, वो भी शायद आउट होता, मतलब तो बुमराह को एक और विकेट मिल जाता, आई मीन। Anyway, बुमराह का फ्यूचर पक्का है आई थिंक इस मैच, इस इनिंग्स में बुमराह इज लुकिंग रियली गुड। बाय द वे बुमराह कहीं से भी, बाय द वे कल रसल अर्नल्ड बोल रहा था कि अक्षर पटेल इतने टर्निंग पिच पे भी फास्ट और स्ट्रेट डाल रहा है, दैट वाज अमेजिंग भाई। उसने अपना फिलॉसफी मतलब वो फिक्स रखा है कि मैं तो भाई स्ट्रेट डालूंगा और फास्ट डालूंगा, चाहे कोई कुछ भी करे। नहीं, आई एम श्योर ऐसी जगह पे उसको ज्यादा सक्सेस मिलेगी देन इवन दो अश्विन एंड जडेजा से भी ज्यादा। बट मैं बोल रहा था कि बुमराह का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सेकंड साइकिल में हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा है, तो ही इज डूइंग गुड। मतलब हम लोग थोड़ा कभी ज्यादा मैचेस सेकंड हाईएस्ट इज भी ऑली इसने खेले ना, रॉबिन्सन जो खेल भी नहीं रहा है, सेकंड हाईएस्ट इज ऑली रॉबिन्सन। यार इंग्लैंड का थोड़ा, यू गाइस ऑलरेडी डिस्कस्ड राइट? नहीं इंग्लैंड वाले मैच की बात करते हैं या
let's talk about it. तो लेट्स डिस्कस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नाउ। वैसे भी कुणाल आज हमें अपडेट्स देते रहेगा ग्राउंड कंडीशंस, एंड आई थिंक कुणाल तुझे एक वीडियो भी बनाना चाहिए क्रिकेट कैवियर के लिए वहां पे। तो या मैन यू शुड या लेट मी ट्राई या थोड़े वीडियो फुटेज लेके आना थोड़े। किसके कॉपीराइट्स लग जाएगा भाई वीडियो बनाना फोन में से, लाइक व्हाटएवर यू कैन। हां उसमें तो देयर विल बी आवर ओन वीडियोस, राइट? उसमें देयर विल बी नो कॉपीराइट्स। या and second let's discuss Pakistan Australia Usman Khwaja, my favorite series, like Usman Khwaja 100. by the way Pratik he got 100 this time. by the way Pratik क्या बोल रहा था कि कुणाल ना वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन उसने झूलन गोस्वामी का पिक्चर लगाया हुआ है। Yeah, she's the highest World Cup wicket taker now, guys. Come on. I'm sorry, man. Yeah, big achievement. प्रतीक वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं अरे वुमेन्स वर्ल्ड कप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुणाल को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, और तूने ही अकेले उसका फोटो लगाया, तो दैट्स क्वाइट फनी। I mean, yeah, because other test matches are anyways pretty one-sided and boring. Man, like मिताली नहीं, ऐसा झूलन गोस्वामी is a legend. बट उस्मान ख्वाजा को क्या हो गया भाई? उस्मान ख्वाजा कब सेंचुरीज बनाना बंद करेगा? मतलब यार मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छा स्पिन कब से खेलने लग गया यार, बहुत कंफर्टेबली खेल रहा है स्पिन को। Well, he is from the subcontinent, so नहीं लास्ट और डिस्कस करो क्योंकि मुझे ना थोड़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्रेडिक्शंस भी करने हैं अभी, मिलके थोड़ा डिस्कस करना है। मतलब तो कल का हाइलाइट्स देखे किसी ने या मैच देखा पाकिस्तान वाला? यार इट्स लाइक उसमें वैसा कुछ मतलब मैंने देखा नहीं क्योंकि इट्स पता नहीं, मजा नहीं आ रहा उसमें। वैसा बहुत मजा आया बिकॉज़ पाकिस्तान की टीम में कितना टैलेंटेड ऑलराउंडर है। फहीम अशरफ क्या प्लेयर है यार, उसने जो वार्नर को बॉल डाला कल, अमेजिंग, क्या सेट किया वार्नर को। एंड देन जब 89th ओवर में मैंने एक्चुअली क्रिक बस पे पढ़ा था कि वो फहीम अशरफ ने 6 लगातार कंटिन्यूअसली एक ही बॉल डाला वार्नर को, एंड उसके बाद उसको वो विकेट मिला। मतलब ही वाज सो कंसिस्टेंट यस्टरडे, एंड डेफिनेटली पाकिस्तान मिस्ड फहीम अशरफ एंड हसन अली। उसका अगर तुम देखोगे बॉल को, इट वाज अमेजिंग बॉल। आई मीन, और उसके बाद स्टीव स्मिथ जब आउट हुआ लाइक 89th ओवर में, तो उसने वन हैंडेड ब्लाइंडर लिया स्लिप में फहीम अशरफ ने। तो ही इज अ प्रॉपर 3D क्रिकेटर एक्चुअली। तो बट अगेन कल मैंने इस बाद में अभी पता चला मुझे, मैंने ऑब्वियसली लाइव मैच पूरा नहीं देखा, पर कि पाकिस्तान ने नेगेटिव बॉलिंग करी डे 1 में। लाइक वो लास्ट टेस्ट मैच में भी किया था। उनको कल वार्निंग भी मिली थी शायद, या कल वार्निंग भी मिली थी आई थिंक। नहीं नेगेटिव बॉलिंग की भी वार्निंग तो नहीं देते हैं। एक तो एकदम फ्लैट डेक्स दे रहे हैं, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया का 4 पर ओवर रन रेट चल रहा था तो नेगेटिव बॉलिंग की। सो वियर्ड टू सी। लास्ट टाइम अगर तू देखा होगा स्मिथ जो रावलपिंडी में जो 75 बनाए हैं, तो उसमें भी एक लेग साइड उसने डाला नोमान अली ने, तो ही गॉट कॉट एट, मतलब कीपर ने कैच ले लिया, स्वीप कर रहा था स्टीव स्मिथ। तो वो उनका स्ट्रेटेजी है एक्चुअली टू टेक विकेट्स। इट्स नॉट नेगेटिव इन द सेंस कि वो लोग ऑब्वियसली वो लोग रन्स रोकना चाह रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग एट अ हायर रन रेट। वो लोग 3-4 के रन रेट से खेल रहे हैं, और एनीवे वो लोग उस्मान ख्वाजा को नेगेटिव डाल नहीं सकते, वो लेफ्टी है। तो ये लोग स्मिथ एंड उसको काफी नेगेटिव डाल रहे हैं। वहां पे रफ भी बन रहे हैं, तो कुछ है नहीं पिच में। बेसिकली पिच हैज नथिंग, एंड वही पाकिस्तान वाले इतने नेगेटिव माइंडसेट से आए इस सीरीज में। जैसा मार्क टेलर बोल रहा था कि they don't want to lose because it's the first time they are playing a big series at home, so their effort is not to lose this test series. मतलब इतना नेगेटिव, जबकि उनका अप्रोच होना चाहिए we have to win, कुछ टर्निंग पिच बना के we have to win the series और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में श्योर करना है। बट वैसा वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। टर्निंग पिच यार, आई मीन उनके पास सब स्किल्स है, उनके बैट्समैन अच्छा डिफेंड कर लेते हैं, तो व्हाई आर दे लाइक, एक ये भी अप्रोच है ना कि थोड़ा सा घास क्यों नहीं दे देते, तुम्हारे पास इतने फास्ट बॉलर्स है, तो व्हाई आर यू अफ्रेड? आई मीन हाँ ठीक है, Cummins and Hazelwood can better use that is why they are afraid. They'll kill it. Cameron Green. तब भी यार तुम्हारा होम ग्राउंड है यार। By the way, why did Hazelwood not play? Because he wanted to play a spinner. He was injured. क्या हुआ? Because Cameron Green is too important, bro. Cameron Green. Maybe they're trying to groom a player for the future. भाई सीरियसली यार, इस पिच पे हेजलवुड को नहीं खिला के कैमरन ग्रीन को कौन खिलाता है? क्या ही घंटा उखड़ लेगा यार कैमरन ग्रीन इस पिच पे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। मतलब ऑस्ट्रेलियंस वाले का दिमाग नहीं है ऐसा लगता है। मतलब
यार पैथेटिक थिंकिंग अरे यार पाकिस्तान की फील्डिंग कितनी बेकार है यार। कल भी मैंने देखा, जैसे बाउंड्रीज हो जाती है थर्ड मैन पे, ऐसे सिंपल से बॉल पैरों के बीच में से निकल जाती है, देन लायन भी आउट हो जाता है लास्ट ओवर में, उसका कैच ड्रॉप कर दिया। हाँ वो तो ड्रॉप। बट वो बहुत अजीब था। 42 ओवर्स में 157 था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, एंड देन दे एंडेड अप एट ओनली 251, तो they only could add 94 runs in the next 48 overs. So नेगेटिव बॉलिंग एंड स्मिथ ने बहुत टाइम स्मिथ लिया बहुत क्योंकि slow खेल रहा है। लाबुशेन क्योंकि रन आउट हो गया ना, तो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया था, क्योंकि लाबुशेन से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ऐसा रन आउट हो जाएगा। वो भी थोड़ा मयंक अग्रवाल टाइप ही किया है कल उसने भी, मतलब तो नहीं, बट मैंने देखा स्मिथ जब फॉर्म में होता है ना, तो जनरली तो देखेगा उसकी बैटिंग स्ट्राइक रेट 60 के अराउंड रहती है, और अभी 1-2 साल से आजकल वो थोड़ा स्लो खेल रहा है। इंडिया सीरीज में भी याद है वो बहुत टाइम ले रहा था स्टार्टिंग में। मे बी इज अंडर प्रेशर बिकॉज सेंचुरी आया नहीं है, काफी टाइम हो गया, मतलब आई थिंक उसका भी हो गया अभी, मारा नहीं है, तो मे बी आई मीन 60 प्लस एवरेज है अभी भी टेस्ट मैचेस में, बट या सेंचुरी नहीं हो रहा है थोड़ा उससे। सेंचुरी सिर्फ जो रूट से हो रहा है एक्चुअली। भाई जो रूट 24th सेंचुरी बाय द वे 24 आ गया, विराट का 27 है। किसी ने नहीं सोचा था कि 15 सेंचुरीज थे, 14 या 15 थे जो रूट के, क्योंकि उसके पहले सेंचुरी नहीं होते थे। जो रूट लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, राइट? बहुत लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा था। जो रूट कीप स्कोरिंग सेंचुरी दिस ईयर, प्रीटी श्योर 1700 रन ठोक दिए भाई लास्ट ईयर जो रूट ने। तो पर 2015 से 2019 में जो रूट के सेंचुरीज नहीं होते थे, बाकी सब स्मिथ और कोहली के हर मैच में, हर सीरीज में होते थे। अभी उल्टा हो गया जब से। यार टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को लास्ट टाइम मिलना चाहिए, पता नहीं शाहीन अफरीदी को वेस्ट इंडीज में उसने मतलब जिता दिया, तो उसको मतलब ठीक है यार। चलो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, बट कुछ प्रेडिक्शन लाइक क्या लगता है, रिजल्ट आ सकता है कराची में? और अगर आएगा तो नॉट एट ऑल, इस पिच पे तो नहीं आ रहा रिजल्ट, नो। आई मीन मुझे लगता है अगर कुछ रिजल्ट आएगा तो इट्स गोइंग टू बी एन ऑस्ट्रेलिया विन, अगर कोई रिजल्ट आएगा तो। इफ ऑस्ट्रेलिया कैन पाकिस्तान कैन कोलैप्स, if Australia can post 450 then they have a good chance, right? Australia should post 400 from here. यहाँ से अगर 400 नहीं करते हैं तो that's very bad. और कैमरन ग्रीन को क्यों खिला रहे हैं? अगर यहाँ से 400 नहीं कर पाए तो कैमरन ग्रीन को क्यों खिला रहे हैं भाई? What the hell? मतलब कैमरन, why is कैमरन? तो या मैं इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का टेस्ट भी अच्छा था एक्चुअली, मतलब डिटरमिनेशन था यार। बॉनर दैट वाज इंटरेस्टिंग। श्योर किया कि दे वोंट लूज। भाई बॉनर इज द बेट ऑन इंग्लैंड यार, आई वुड बेट ऑन इंग्लैंड, आई लॉस्ट द मनी। अरे यार पर कुणाल सीरियसली किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि फर्स्ट आवर में 49 फॉर 4 के बाद ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। आई मीन ड्रॉ का रेट्स वुड हैव बीन रियली हाई इफ यू हैड बेट ऑन ड्रॉ। मतलब यार किसी कोई तो मालामाल हो गया होगा अगर ड्रॉ पे किसी ने बेट किया होगा। ये ऐसा ड्रॉ था जो मैंने एक्चुअली एंजॉय किया, बिकॉज बहुत अलग तरह से हुआ है यार सीरियसली। लेकिन वही इंग्लैंड, अगेन इंग्लैंड का सिलेक्शन वाज क्वेश्चनेबल, ठीक है, उनको कोई एक चाहिए था बॉलर अच्छा, और वोक्स को कुछ हो गया। शिखर, व्हाट हैज हैपेंड टू फेवरेट वोक्स ब्रो? ही डज नॉट लुक गुड एनीमोर। आई मीन ही जस्ट लुक्स गुड, बट उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं आ रही है। आई थिंक वो थोड़ा उसको थोड़ा, अरे यार ऑली रॉबिन्सन एंड ब्रॉड, यार दोनों के बिना तुम कैसे जा सकते हो? मतलब यू हैव नो इंटरेस्ट इन रॉबिन्सन इज इंजर्ड, जहां तक मुझे पता है रॉबिन्सन इज इंजर्ड या फिर उसको रेस्ट दे रहे थे, लेकिन ब्रॉड को जबरदस्ती नहीं छोड़ा, ब्रॉड को लेके आना चाहिए था। या ब्रॉड को लेके आना, मतलब यार बट डू यू थिंक वोक्स शुड बी ड्रॉप्ड इन द नेक्स्ट गेम? उनकी डू यू थिंक योर फेवरेट वोक्स शुड बी ड्रॉप्ड इन द नेक्स्ट गेम? ब्रॉड और ऑली रॉबिन्सन उनके तीन बेस्ट बॉलर है, तीनों ही नहीं है, मतलब क्या कर रहे हैं यार? नहीं नेक्स्ट गेम में तो यार अभी वोक्स को ड्रॉप करेंगे तो उनके पास ऑप्शन क्या है? मतलब नहीं करेंगे वो साकिब मशहूद क्या नाम है? साकिब महमूद वोक्स की बॉलिंग खराब हुई तो बैटिंग अच्छी कर रहा है, ही विल बी गुड। एशेज में वोक्स बैटिंग अच्छा करता है। प्रतीक, आई एग्री विद प्रतीक, वोक्स बैटिंग के लिए भी तो है भाई, वोक्स रहेगा। someone to break in bowling में भाई, this bowling is not going anywhere। आना चाहिए, ओवरटन बहुत फीका है, ओवरटन की जगह आना चाहिए। नहीं वुड बी इंजर्ड है आई थिंक नेक्स्ट मैच में, तो वुड बी इंजर्ड है इसीलिए। guys I won't be surprised if West Indies end up winning this series because wood भी नहीं है। नहीं यार देखा जाए तो इंग्लैंड थोड़ा अच्छा खेल रही है, ठीक है, इसलिए बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड को लास्ट मैच में हराना। बाय द वे इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज में लास्ट 54 इयर्स में सिर्फ एक सीरीज जीता है बाय द वे। तो वेस्ट इंडीज ऑलवेज प्लेज वेल एट होम अगेंस्ट इंग्लैंड, दे ऑलवेज फाइट अ लॉट। तो मे बी वेस्ट इंडीज में डे 3 क्या डिफरेंट खेला मैन, लाइक होल्डर फर्स्ट 3 या 4th ओवर में आउट हो गया था, दे वर 5 डाउन,
बट वो तब भी ऑल आउट टीम है, पूरा दिन खेले एंड दे ओनली मेड 170 रन्स, बट कितना डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट था वो, लाइक वी हैवंट सीन सच क्रिकेट फ्रॉम वेस्ट इंडीज एटलीस्ट इतने टाइम नहीं, में। बॉर्नर ने ऑब्वियसली उसको ड्रॉप भी किया इन्होंने, बट फुल क्रेडिट टू हिम कि उसने ऐसा इतना टाइम लिया, मतलब he took a lot of time away from the game and he ensured that finally 2 दिन खेल के भी ये लोग जो 300 ही रन बनाए हैं, तो that proved to be the difference. And even though Johnny Bairstow का जो 100 था, I thought that was such a top class 100 coming at 40 for 4, you are coming in such a pressure situation, and that was the innings of the match for me. I mean, incredible knock by Johnny Bairstow. अगर वो नहीं होता तो शायद इंग्लैंड हार भी जाती है टेस्ट मैच। एंड जॉनी बेयरस्टो ने एक्चुअली बहुत ज्यादा पेशेंटली स्टार्ट किया था, ही वाज लाइक 60 ऑफ 160 विद जॉनी बेयरस्टो को अपन ने ऐसा खेलते हुए देखा नहीं है। एंड देन तो उस टाइम पे conditions required it. Bairstow Stokes धीरे खेलना था, 4 विकेट्स गिर गए थे, तो he played really well, and Bairstow is a very versatile batsman. Yeah. बट शिखर ने वो पॉइंट एशेज में भी सेंचुरी मारी थी उसने। वेस्ट इंडीज ने जो 2 दिन में सिर्फ 350 रन बनाया, अगर वो 1.5 दिन में बनाते तो बेसिकली डे 5 में पूरा उनको खेलना पड़ता है एंड वो ऑल आउट हो जाते हैं आज, बट जस्ट बिकॉज वो इतना लंबा खेले थे फर्स्ट इनिंग, दे कुड सेव द मैच। एंड मुझे और एक बहुत इंप्रेसिव चीज लगा बेन फोक्स का कीपिंग एंड बैटिंग। मतलब मुझे लगता है बेन फोक्स को अब देना चाहिए, हो गया बटलर एंड मतलब बिलिंग्स वो सब ट्राई कर लिया, अभी बेन फोक्स को एक्सटेंडेड रन देना चाहिए। एंड ही इज सच अ नीट एंड क्लीन कीपर, और बैटिंग भी अच्छा करता है, तो उसने इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप किया। एक्चुअली बेयरस्टो खुद अकेले नहीं बचा पाता, अगर बेन फोक्स के साथ वो पार्टनरशिप उसका नहीं होता, तो मुझे लगता है बेन फोक्स प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल। एंड ऑब्वियसली जैक क्रॉली का सेकंड टेस्ट सेंचुरी आफ्टर स्कोरिंग 267 ऑन हिज डेब्यू सीरीज, तो दैट वाज आल्सो उसका बैटिंग बहुत अच्छा है, वो ड्राइव्स बहुत बढ़िया मारता है जैक क्रॉली। एंड जो रूट अगेन मैन कितना कंसिस्टेंट हो गया यार, फर्स्ट इनिंग से भी एक्चुअली कुछ 50 मारा था आई थिंक। ही इज लाइक जो रूट इज द यार जैक लीच के अलावा इंग्लैंड के पास कुछ और स्पिन ऑप्शन नहीं है क्या? मतलब यार नहीं, नेथन लायन का स्ट्राइक रेट इतना कम है, उसको 12 ओवर लगते हैं 1 विकेट लेने में। आई थिंक जैक लीच उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, मतलब कितना इनफेक्टिव बॉलर है यार वो। आई थिंक अगर कोई अच्छा स्पिनर होता है इंग्लैंड के पास तो कल वो लोग जीत जाते वो टेस्ट, क्योंकि बहुत टर्न हो रहा था और जैक लीच को भी 3 विकेट मिल ही गए, तो यू कैन सी कि पहले भी शिखर ब्लैकवुड बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है यार, उसको क्या वाइस कैप्टन वगैरह बना दिए थे। और अरे ब्लैकवुड इज यार इंग्लैंड यार वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ऐसे ही हैं भाई। कुणाल ने पिक किया था ब्लैकवुड को, भाई साहब इस बार मैंने नहीं पिक किया था ब्लैकवुड को, कुणाल ने इस बार पिक किया था। अनदर जस्ट लास्ट थिंग बिफोर आई एम विनिंग, ठीक है, I want Dream 11. Jason Holder is unbelievable man, क्या दोनों इनिंग्स में कितना अच्छा बैटिंग किया, and he always picks wickets. He's a top notch all rounder for sure. नहीं, मुझे तो अभी लगता है वेस्ट इंडीज का यार पेस अटैक काफी अच्छा है। मतलब अभी शेनॉन गैब्रियल नहीं है उनके पास, बट स्टिल इफ यू सी जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, ये लोग न्यू बॉल से नहीं कर रहे हैं। ये दोनों बॉलर्स जो काफी अच्छे हैं, ये लोग न्यू बॉल नहीं लेते हैं। इट इज केमार रोच एंड जेडन सील्स हु टेक द न्यू बॉल। एंड केमार रोच ने जो बॉलिंग किया, जो रूट को उसने बोल्ड किया यार, व्हाट अ बॉल दैट वाज। मतलब रूट को उसने उसके पहले एक बॉल मतलब उसको ड्रॉप, क्रॉली को भी किसी ने बोल्ड किया था ना, क्रॉली को सील्स ने किया था शायद। नहीं, क्रॉली को होल्डर ने किया। आई थिंक क्रॉली बोल्ड नहीं हुआ था। आई थिंक सेकंड इनिंग्स में बोल्ड हुआ था, होल्डर ने। सेकंड इनिंग्स में बोल्ड। हां यार मुझे सील्स अच्छा लग रहा था। सील्स कैन बी अ गुड बॉलर, मतलब ही इज यंग एज वेल। बहुत अच्छा है, मैं पहले फर्स्ट मैच से देखा उसको साउथ अफ्रीका के। बट मैं बोल रहा था 20 साल का ही है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मैन ऑफ द मैच था। तो जेसन होल्डर हर सीरीज में अच्छा खेलता है यार। नाउ वेस्ट इंडीज टीम हैज बिकम बेटर, तो मुझे लग रहा है थोड़ा फाइट है इस टीम में। वेस्ट इंडीज पता है ये ड्रॉ करके दे मूव टू 7th स्पॉट बिकॉज़ बांग्लादेश से उनका 1 पॉइंट ज्यादा हो गया। गाइस मैं एक बार इस पे क्विकली थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं कि थोड़ा सा आई मीन थोड़ा अर्ली है, बट वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द मिडिल ऑफ द चैंपियनशिप सेकंड साइकिल। तो आई थिंक दिस इज द टाइम वी कैन जस्ट क्विकली डिस्कस कि क्या लग रहा है कि कौन 2 टीम्स फाइनल्स खेल सकते हैं। We already discussed last time, right? Australia and anyone else. I want to discuss again. Australia maybe is sure, and maybe South Africa will. नहीं मेरे को ऑस्ट्रेलिया का चांसेस पता है कम लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि उनको 2 टफ सीरीज हैं, इंडिया और श्रीलंका के अगेंस्ट। बाय द वे गाइस, यू वोंट बिलीव 2016 में द लास्ट टाइम व्हेन ऑस्ट्रेलिया टूर्ड श्रीलंका दे लॉस्ट 3-0 एंड श्रीलंका का मैं एक्चुअली जाके देखा कि क्या टीम था। सेम बैटिंग लाइनअप, करुणारत्ने, कुशल मेंडिस,
Matthews, exactly same batting lineup. चांदीमाल ने जिताया था वो सीरीज, मुझे याद है चांदीमाल But ने this बहुत Aussie- ब्रिलियंट इनिंग्स और- खेला था उस सीरीज में. Another thing was they had Herath at that time. वो Herath तब तक खेलता था. नहीं वो तो अभी भी वो लोग जीत सकते हैं यार. एम्बुल्डन या वो अगर ऐसा पिच बना देंगे जैसा पाकिस्तान नहीं बना पा रहे तो वो लोग जीत जाएंगे डेफिनेटली, उसमें कोई Yeah, doubt तो नहीं है. I'm thinking कि actually Australia has a chance of losing to both India and Sri Lanka. तो ऑस्ट्रेलिया का फिक्स नहीं है फाइनल पहुंचना. पर ये सीरीज से वो लोग सारे मैच ड्रॉ कर लेंगे ना तो थोड़ा उनका बेटर हो जाएगा पोजीशन. ड्रॉ में एक्चुअली सिर्फ 4 ही पॉइंट मिलते हैं, Let's दैट्स see. वेरी एक्चुअली. बट द मोमेंट ऑफ दिस वीक, मैं फिर से मतलब जस्ट बता रहा हूँ, केमार रोच बॉलिंग बोल्ड, bowling a route with that in swinger, that was the moment for me. केमार रोच कभी-कभी बहुत यार अच्छा कब तक खेलेगा वो? कब तक खेलेगा? बहुत टाइम से खेल रहा है वो. हाँ, बहुत. He's been there for a while. He's only 33. भाई 15 साल हो गया बहुत होगा टाइम से उसका खेल रहा है. करियर. भाई ब्लैकवुड की बहुत time से जगह खेल रहा अगर रॉस्टन चेज होता तो आई वुड हैव बेटेड राइट नाउ कि अब वेस्ट इंडीज विल विन दिस सीरीज. आई एम मिसिंग रॉस्टन चेज. यार, I am backing England to win this series, to be honest. England जीत जाएगी मुझे लग रहा है. England is playing well. मे बी 1-0 होगा. आई थिंक ऐसे पिचेस रहेंगे ज्यादा. 1-0 जो England will win. या मुझे लग रहा है ये सारे टेस्ट मैच ड्रॉज होंगे. ये तो पाकिस्तान फिर ना मैं ऑस्ट्रेलिया या हो सकते हैं एक्चुअली ड्रॉ सारे. Even Stokes looks good अभी, and Stokes adds a lot of value. Root भी है, Bairstow है. यार England जीत जाएगी. It will be very difficult for West Indies to तो compete. चलो guys, we'll conclude the session. I mean, lot of interesting things to look forward to. But देखते हैं आज क्या होता है. पहले तो आज is a critical day for both the test matches. तो आज देखते हैं क्या होता है. इंडिया Critical day क्या? We know India is winning, ठीक है. Just कि आज जीतेंगे कल जीतेंगे क्या? भाई वो भी इम्पोर्टेंट है देखना. और थोड़ा मजा आ रहा है. इंडिया श्रीलंका टेस्ट मैचेस, इंडिया श्रीलंका टेस्ट मैच हैज नॉट बीन बोरिंग. एट लीस्ट वी कैन से दैट इट्स नॉट बीन बोरिंग एंड इट्स बीन क्वाइट फन टू सी द विकेट्स. इट्स वन साइडेड, या ऑब्वियसली. Yeah. Today I plan to reach half an hour before, ठीक है, such that ऐसा नहीं हो कि मैं लाइन में खड़ा हूँ, लाइन में खड़े चारों श्रीलंका ऑल आउट हो जाए. ठीक है, I'll reach half an hour early. तो इंडिया की बैटिंग देख लेगा, टेंशन मत ले. But I want to see the wickets also. बैटिंग क्या ही देखेगा. Yeah, today I'll watch Rohit Sharma bat. Yay. Yeah, actually मजा आएगा अगर इंडिया में 100 मारेगा आज तो. It will be क्योंकि टफ कंडीशंस है उसमें, अगर 100 मारेगा तो बहुत मजा आएगा भाई. हनुमा विहारी भी अच्छा ड्राइव्स मारा यार कल. मजा आ गया उसका बैटिंग देख के एक्चुअली. कोहली ने भी एक चलो गाइस, दैट्स इट. कैप करते हैं आज का डिस्कशन. तो विल मीट यू सून नेक्स्ट वीक टू डिस्कस द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. बाय गाइस.